All right. So for this duration T1 to T2, we came to know that ye path of the graph is this. I mean, VT graph is going like this. So this is what does it indicate? Uniform acceleration or non-uniform acceleration? एक ऐसा ही है, not constant है ना? Are you there? Sir. All right. So constant नहीं है. Therefore, we cannot use the equations like V is equal to U plus AT and so on. So first equation cannot be used because it is similar to the S is equal to UT plus half AT square, which cannot be used. That is for uniform acceleration. Second equation also, it is V is equal to U plus AT. That cannot be used. What about C and D and E? F also. C क्या है देखो? C is average velocity is change of, I mean, it is the displacement upon time. This will indicate displacement upon time. So is it okay? Can we do this? Can we use this? Are you there? Quickly confirm कीजिए, बताइए ये जो है average velocity, is it for uniform acceleration or non-uniform acceleration or for both? बोलिए. It is for all the situation, all the situations. ये इसमें हमने कभी ऐसा नहीं लिखा था कि acceleration should be uniform है ना. Average velocity is equal to displacement upon time is whether acceleration is there or not, whether uniform or not, valid for all situations. So this is valid for all type of acceleration. Even if acceleration is not there, then also it is valid. Okay. What about this one? D, average acceleration is change of velocity upon time. Is it okay? D is okay or not? Quick response. बोलिए. This is also valid for all the cases. Uniform acceleration के लिए भी यही definition होगी average acceleration की. Non-uniform के लिए भी ये होगी. All right. So D is also correct. What about E? E is E का क्या है? ऐसे कोई क्वेश्चन पढ़ी थी क्या हम लोगों ने? Displacement is given by average velocity. ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है अपने. ये एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है वो, है ना? तो ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ी हमने. व्हाट अबाउट लास्ट वन? लास्ट वन इज x2 minus x1 is the area under the VT graph. सही है क्या ये? x2 minus x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This is representing the displacement. x2 minus x1 is nothing but a displacement. So how do we get the displacement? Yes, area under the VT graph bound by the time axis and the dotted line shown. Yeah. Yes, it's okay. Whether uniform acceleration or non-uniform acceleration doesn't matter. Area, if you can find out area, fine. इसका area निकाल पाएंगे क्या? नहीं. We have to, area means what? Integration also. Integration की help लेनी पड़ेगी because this equation will be given. V is equal to say something t square plus something like that. तो area जो है, it is non-traditional, non-conventional. तो integration से ही आएगा. But integration also gives the area. Area means it is okay. Area of the VT graph gives us the displacement. So this is very good question. Huh? Agreed or not? बोलिए. Concept wide good question. Any part you have the doubt, tell me. बोलिए किसी part में doubt है आपको? This is fit question for JEE and NEET both.
and for normal board examination also. Yes, normal subjective test also. Yes, go ahead. So question 18. 18. Okay, ये इसमें पूछ रहा हूँ मैं. Done? Yes sir, पर question 18 में doubt है. क्या था question 18? हमने क्लास में बोला था क्या आपको? क्या है क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे. 8 है. बोलिए, कैन यू रीड इट स्लाइटली? उसको पढ़ सकते क्या थोड़ा? Yes sir. क्या है? जस्ट A रीड वन police लाइन. van moving on a हाँ highway हाँ, with ओके a ओके ओके speed ओके, of. ये हाँ, यस, ये वाला था. हाँ, करेक्ट. तो इसमें क्या डाउट है, बोलिए. तो सॉल्व इसमें करना नहीं समझा. देखो, इसको समझाता हूँ. यहाँ पे देखो, मैंने बोला था वेलोसिटी ऐड कर लेना पहले. तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सी पुलिस वैन जो है, इट इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर फायरिंग द बुलेट. बुलेट की जो स्पीड है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू गन. मजल स्पीड है ना, तो गन के रिस्पेक्ट में 150 से फायर किया. ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसमें ये स्पीड भी ऐड हो जाएगी, 30 भी ऐड हो जाएगी. मीटर पर सेकंड में करना है इसको, 5/18 है ना. वाइल मूविंग. या Can you shift me to JE class? not possible, it is done. Ma'am is there, ma'am, because I am not the host, I cannot do it. Ma'am, are you there? मोहित सर को कॉल कर लीजिए प्लीज. Yes sir. ओके, ठीक है. तो ये स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे. वी बुलेट विल बी 150 प्लस 30 इंटू 5/18 है ना. ये कुछ आ जाएगा, कैलकुलेशन किया, आई विल शो यू. ठीक है, तो बुलेट की स्पीड आ गई और थीप की स्पीड है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप. यहाँ पे शायद मैंने कैलकुलेट किया. यस, इट इज हियर. कैन यू सी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 150 प्लस 30 इंटू 5/18. इट इज कमिंग, ये आएगा आपका 25/3. एलसीएम ले लीजिए, 475/3. बुलेट की स्पीड मिल गई. बुलेट विल हिट द थीफ्स कार with relative velocity of bullet with respect to car, thief's car. तो VBT, velocity of bullet with respect to thief car, तो VB minus VT. बुलेट की वेलोसिटी ये है, थीप की कितनी है, 192 इंटू 5/18, दैट कम्स 160/3. तो एलसीएम लिया तो ये 315/3, दैट कम्स 105 मीटर पर सेकेंड. उसको 105 से जाके हिट के रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी with which bullet will hit. Damage will be less in, है ना, because it is also moving, bullet is also following. तो इसकी ये जो स्पीड है, उतना डैमेज कम होगा. सपोज थीप इज आल्सो मूविंग विद द सेम स्पीड, बुलेट विल नेवर हिट, है ना. अगर थीप की भी स्पीड उतनी हो जाए बुलेट की, है ना, ऐसा होता है बुलेट की स्पीड से मूव करता है. यस, इट इज हैपनिंग इन द फिल्म स्टार रजनीकांत शो. जिस स्पीड से बुलेट आती है उसी स्पीड से ही मूव्स बैकवर्ड, but it is in the films only, not possible to move with that much fast. तो bullet is not able to hit him, bend हो जाता है वो, बुलेट निकल जाती है उसकी ओर. Got it? समझा? बुलेट की स्पीड जो है, if you are moving, if the thief is moving, उतना माइनस कर दो. That is what is the speed of bullet with respect to thief's car. Got it? 105 is the answer. अगर ग्राउंड से फायर करते तब 150 पूरा बुलेट का 150 लेना पड़ता. फिर मूविंग कार से फायर किया है तो कार की स्पीड भी ऐड हो गई, पुलिस वैन की स्पीड भी ऐड हो गई. Yes sir. Understood. ओके, तो two more questions we are going to do and then we will start vectors. तो देखो, this question was done in the class itself. ये देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुड क्वेश्चन. रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें. तो व्हाट दे आर गिविंग इज 1 2-lane road. On 2-lane road, car A is traveling. ये कार A कहाँ पर ही है, traveling with the speed 36. Two cars B and C approaches car A. B is here, C is here.
both are heading towards the car A from opposite directions with the speed 54 each. At a certain instant when the distance of B, distance AB is equal to AC, both are equal and both are 1 kilometer. This distance and this distance each is 1 kilometer each. B decides, this one decides to overtake C. इसको C से आगे नहीं, सॉरी, ओवरटेक A बिफोर C डज. इसको इधर से आगे C जो है A से A को क्रॉस करने से पहले B क्रॉस करना चाहता है. Is it okay? What minimum acceleration of B is required to avoid the accident? B का कितना एक्सेलेरेशन हो कि भाई ये पहले निकल जाए, बाद में फिर ये ओवरटेक करे, बाद में ये आए. तो इफ वी डू इट विद द रिलेटिव वेलोसिटी देन इट इज इजी. तो पहले तो ये निकलना है ए एंड सी कितने टाइम में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को. टाइम टू क्रॉस ए एंड सी कैसे निकालेंगे? टाइम टू मीट ए एंड सी कितने टाइम में मीट करेंगे? तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर. तो 1 किलोमीटर डिवाइड बाई V1 प्लस V2. क्लियर? तो वो टाइम मिल जाएगा. डिस्टेंस कितना है? 1000. रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? ये 10 है, ये 15, दोनों ऐड कर दो. 10, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी फास्टर. तो दिस विल कम, कितना आएगा ये? 25. तो ये 40 सेकेंड्स आ जाएगा. तो 40 सेकेंड में A एंड B विल जस्ट मीट. तो उससे पहले B को क्रॉस करना है, तो B शुड स्टार्ट accelerating with the certain acceleration, so that he covers the relative distance between them in 40 seconds. 40 seconds में ये A तक पहुंच जाए, है ना, A तक पहुंच जाए. तो distance will be, इनकी relative velocity कितनी होगी? This is moving with 15, तो initial relative velocity is 15 minus 10. ये भी relative velocity से करना पड़ेगा. इसके रिस्पेक्ट में B is going towards it with 5. ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 5 है. डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज कॉल्ड 1 किलोमीटर. तो हम फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो S जो है 1 किलोमीटर है, 1000. रिलेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी बिटवीन देम, तो ये 5 आएगी. टाइम इसका जो, इनका जो मीटिंग टाइम है 40 सेकंड, वो लेना पड़ेगा, तब तक ये इसके पास पहुंच जाए, A के पास. तो दैट्स हाउ इट विल बी डन. तो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन. यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था दूसरे बेंच के लिए. देखो पहले क्या करना पड़ेगा? टाइम, ओके, ये लेट मी ब्रिंग द डायग्राम हियर फर्स्ट. पहले डायग्राम को नीचे लेके आते हैं. ये ठीक है. तो टाइम टू मीट ए एंड सी जो है कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो 40. ठीक है. नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A जो है B को ऑब्जर्व कर रहा है ना. ऑब्जर्वर को रोक भी सकते हैं अगर ऐसे इमेज Sir, you are not audible. Just a minute.
Ma'am, Yes, I need to call sir, ma'am. I have called. Sir has. I have called. There he is joining again. Can you hear me now? Yes, sir. Okay, just let me share the screen, ma'am. Just all right. देखिए can you hear me? देखो ये this is question was this question was going on, है ना? So this is the question number 8, and we are given that car A is traveling with 36, car B is with 54, and or car A 36 and two cars B and C approaches A in opposite direction with 54. All right. At certain extent, when the distance AB is AB and AC both are 1 kilometer each, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid the accident? ठीक है, तो ये situation देखो, A is here, B is this, C is here. A is moving with what is called 54 means 15, और ये भी 54 है तो 15 meter per second, किलोमीटर में था, and this is your, this will come 10 meter per second. So now what we do, A and C जो है, they are approaching each other. So time to meet, at what time they will be meeting? So time to meet A and C will be, distance कितना है 1000, and उनकी relative velocity will be added up. Now distance covered opposite direction में आ रहे, so relative velocity will be added up. Both distance covered will be faster, both are moving towards each other. तो दोनों add हो गई, 10 plus 15. So dividing it, we get 40 seconds. So 40 seconds में A and C will be just crossing each other. तो B को उससे पहले overtake करना है. Now B के लिए relative velocity का approach लगाएंगे. Relative velocity of B with respect to A. A is also moving with 10. B is moving with 15. So relative velocity of B with respect to A will be 15 minus 10. दोनों एक ही direction में जा रहे हैं. So B is moving with 15, A is moving with 10. तो B is effectively moving towards A with 5 meter per second. उसकी effective velocity कितनी हो गई? 5 meter per second. Distance कितना cover करना है? 1000. Relative distance जो होगा, S is equal to UT plus half AT में put कर देंगे, half AT square में. Relative distance is 1000. Initial relative velocity is 5 only. And time, ये जो 40 second है, B को 40 second में पहुंच जाना है, वहां पे ओवरटेक भी कर लेना है ना. तो 40 सेकंड पुट कर दिया, ये वाला टाइम इधर दोनों जगह. तो व्हेन वी सॉल्व दिस, एक्सेलरेशन कमिंग टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दोनों जगह हमने रिलेटिव मोशन का अप्रोच लगाया. यहाँ पर भी इस केस में भी इससे टाइम निकाला, इन दोनों के बीच में भी लगाया. तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा? ए विल बी रीचिंग समवेयर एट, तो बी भी वहां पहुंच जाएगा, और सी विल आल्सो बी जस्ट कमिंग क्लोज टू दैट. तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए. This much or slightly more than this, 1.001, ऐसा slightly more or this much. If this much is there, we'll take it. Okay, B is just crossing, A is also very nearby. Sorry, C is also very nearby. A will be somewhere here, C will approach here, B will also be somewhere here. So we will take B is overtaking before C comes. All right. So this is what is the relative motion. Got it? नोट कर लो इसको. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो रिलेटिव मोशन से ये इजी है, अदरवाइज बेसिक पॉइंट्स पे जाने पड़ेंगे, सब प्लस माइनस करके करना पड़ता है. दैट इज कॉम्प्लिकेटेड मेथड.
ओके, नोट कर लो इसको, एक्सेलरेशन इज ए मीटर 1 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके देखना 1 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमने सॉल्व किया थोड़ा, ये 1000 एंड दिस विल बी 200, तो 800 बचेगा यहाँ पर, ये इधर शिफ्ट कर देंगे। दिस 2 इज कमिंग हियर, दिस 2 इज कमिंग हियर, 40 into 40 गोइंग डाउन, तो ये एक्सेलरेशन सॉल्व करने से 1 मीटर पर सेकेंड इसको आ जाएगा। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके वाइंड अप करते हैं इसको। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट व्हिच वन इज दैट। ये कर लेना अपने आप, दिस आल्सो, दिस। ओके, दिस वन आई वाज जस्ट टेलिंग यू, ये क्वेश्चन जो है, वन is first part and second part is we will do it, third part you can try those who are going for JEE. देखो, man walks on the state road from his home to market 2.5 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, होम एंड मार्केट का डिस्टेंस है, with the speed 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर while going to market is 5, finding the market closed, he instantly turns and walks back to home. While going, it is going with the 5 kilometer. Is it okay? कुछ प्रॉब्लम है क्या? 5 किलोमीटर पर आवर, while returning it is 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of 0 to 30 minutes? 0 to 30 मिनट के लिए दोनों निकालना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, है ना, बोथ। तो हाउ टू डू दिस फर्स्ट पार्ट, ये वाला। Just a second, sir. Just a second, sir. या टाइम निकालना पड़ेगा, टू का टाइम एंड फ्लो का टाइम, बैक का टाइम, टाइम टू रीच टू मार्केट, ये निकाल लो पहले, ना कर लो, करते रहो। टाइम टू रीच द मार्केट, T1 is distance upon velocity और स्पीड V1 कर दो उसको। Average V1 velocity 0. Average velocity 0. ओके, 0 आई डाउट, हाँ, नो, 0 to 30 मिनट के लिए नो। No, it will be same as average. It will be same as average speed. हाँ, तो कितनी, हाउ मच इज एवरेज स्पीड, सेम। अच्छा, जो जिस स्पीड से जा रहा है वही है क्या, 5 आ रहा है क्या? ठीक है, वील गो बैक टू द बेसिक्स। पहले तो ये पता करें ना टाइम कितना है, हम भी करें। अच्छा, कहाँ पे होगा? एट द एंड ऑफ 30 मिनट, वेयर विल बी ही, वेयर विल बी ही? 30 मिनट्स के बाद होगा कहाँ पे, पहले तो ये पता करो ना। ओके, मार्केट जाने का टाइम निकाल लेते हैं पहले। डिस्टेंस कितना है? 2.5, और टाइम V1 कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर विल गो, एंड ये 1/2 आवर। 1/2 आवर मीन्स हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में ही इज रीचिंग टू द मार्केट। 30 मिनट्स में रीचिंग टू द मार्केट, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी will be equal to average speed only. So it will be 5 only. So it will be 5 5 only. only. Average velocity is displacement upon time. Displacement कितना हो रहा है? 2.5, और टाइम जो है हाफ एन आवर, 1/2, तो फिर से वही आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड विल आल्सो बी सेम। डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं, वही हो गई। तो क्यों सेम? बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, और he is able to reach to market, तो therefore जो 5 है, दोनों का आंसर 5 आ जाएगा। चाहे हमने सॉल्व करके देख लिया, टाइम निकाल लिया, फिर से वापस से कैलकुलेशन करके देखा तो 5 आ गया, ये भी 5 आ गया।
तो फर्स्ट पार्ट का इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द जर्नी गोइंग टू मार्केट, दैट्स ऑल. तो इसीलिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हैपन टू बी सेम, व्हिच वाज 5 with which he was moving. All right, समझ में आ गया सबको? हमें टाइम पता करना था कि कहाँ मार्केट तक जाने का टाइम कितना, हाफ एन आवर आया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड से. दिस मच इज ओके, डायरेक्शन इज नॉट चेंज सो फार, इसलिए दोनों सेम. बोले यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पार्ट 0 to 50. तो पहले पता करना पड़ेगा 50 मिनट्स में है कहाँ पर वो. टर्न, उसका टर्न भी हुआ, whether he has reached to the home or he is midway somewhere. तो वापस आने का टाइम निकालो पहले. टाइम टू गो बैक, टाइम फ्रॉम मार्केट टू होम, T2 is डिस्टेंस तो सेम ही है, V2 से डिवाइड कर दो, सेकंड वेलोसिटी इज 7.5, V2 is 7.5, मार्केट का डिस्टेंस वही रहेगा 2.5, दिस इज 7.5, दैट इज 1/3 आवर. 1/3 आवर्स कितने होते? 20 मिनट्स होते क्या? 1/3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 20 मिनट्स. तो 20 मिनट्स उसको घर आने में लग रहा है, मीन्स 30 मिनट्स जाने में लगा, 20 मिनट्स. So he is back to home after the 50 minutes. Therefore 30 plus 50, oh sorry 20, 30 मिनट जाने में लगा, 20 मिनट आने में, 50 minutes. He will be back to home at the end of 50 minutes. 50 minutes हो गए. Therefore he is back to home after 50 minutes. Got it? तो वापस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अभी बताओ? एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम, T1 plus T2. डिस्प्लेसमेंट इज 0, ही इज बैक टू होम एट द एंड ऑफ 50. तो ये आपका हो गया 0. नीचे टाइम जो है T1 plus T2, इसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, तो 0 हो गया. बट एवरेज स्पीड इज हाउ मच? डिस्टेंस अपॉन टाइम, T1 plus T2. डिस्टेंस इज 2.5 plus 2.5, आने जाने का डिस्टेंस सेम है, अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना हो रहा? 50/60 किलोमीटर पर आवर में निकलना है. 50 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आएगा? 5/50 इंटू 60. ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? ये 0 0 इसका कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, 6 आ रहा है क्या? 6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड. गॉट इट? देखते हैं आंसर कितना है. या 6 किलोमीटर पर आवर, राइट है. तो देखो व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन, जिस सी पार्ट छोड़ दीजिए, जस्ट लीव द सी पार्ट. सी पार्ट अभी मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए. यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज व्हाई इट इज बेटर टू डिफाइन एवरेज स्पीड as total path length divided by time and not as magnitude of average velocity. Magnitude of average velocity is not equal to average speed. All right, you would not like to tell the tired man on his return home that his average speed was 0. उसको ऐसा लगेगा कि तुमने बोला एवरेज स्पीड 0 है, he will not feel good, है ना? तो उसकी एवरेज वेलोसिटी इज 0 बट एवरेज स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर. गॉट इट? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड. दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब इट मे बी इक्वल एंड मे नॉट बी इक्वल. डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इक्वल नहीं होंगे, है ना? अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो they will not be equal. डायरेक्शन अगर सेम रही तो they may be equal, they will be equal. इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0, उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो 0 होगा, बट दैट इज नॉट सर्टेनली द एवरेज. इसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड जो है नहीं होगा एज ए जनरल डेफिनेशन नहीं होगी ये.
Average speed is defined by the distance upon time. Got it? So that's what they want to explain कि both are different things. उसका इसका अगर हम magnitude ले लेंगे, mod ले लेंगे average velocity का, so it may not be average speed in all the cases. Sometimes it is possible, but it is not the general definition. ठीक है, ये पार्ट कैसे करेंगे? 0 to 40. 0 to 40 के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 minutes में he is here, next 10 minutes में कहाँ पे है? That distance you have to find out. तो फिर वो माइनस कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, अपन टाइम कितना हो जाएगा? 30 + 10 40 हो जाएगा, है ना? तो पहले 10 मिनट्स में रिटर्न जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है तो ऐसे ही आ जाएगा 10 मिनट्स में, है ना? x2 निकालो, डिस्टेंस विल बी v2 × 10 कर दो, 10/60 आवर्स में कन्वर्ट कर लो. ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर 2.5 में से माइनस कर लो, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट. तो उससे आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. और जो डिस्टेंस है एवरेज स्पीड निकालेंगे 2.5 प्लस जो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस गया x2 वो निकाल लो, दोनों ऐड करके टाइम से डिवाइड कर दो 40 से, 40/60 से. तो एवरेज इन दैट केस एवरेज स्पीड मिलेगी और फर्स्ट केस में एवरेज वेलोसिटी मिलेगी जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड करेंगे. तो दिस पार्ट इज ऑन टू यू. यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस आर देयर, वी कैन जस्ट अवॉइड दैट टाइम, यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर. आंसर दिया हुआ है, आंसर इतना आएगा, 15/8 आएगा, ये 45/8 आएगा.